السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بل بوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراط اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن لاہم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرز راہت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں فندہ تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس فندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے یہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن لاہم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں من مانی کر رہی ہے اور ان میں سے بعض اس کی قید بند سے آزاد ہو کر اپنے پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہے۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ ضرورت؟ اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کرتی ہے؟ تیری بھانجی، لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن لاہم نے بڑی زور سے کہا لگایا، فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ نے کہا، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری اور زیادہ بری حالت ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ آیا ہے کوئی؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا۔ کوئی مرز راہت سے آیا ہے؟ قاصد آیا ہے، دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، زخمی ہے، بھیجو اسے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ جبلہ بن لاہم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ بھی نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔
क्या मुसलमान फंदे में नहीं आए, आकर निकल गए हैं? हाँ, कासिद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, वो निकल गए। उन्होंने ऐसी चाल चली कि हम उनके फंदे में आ गए। अपनी फौज कट गई है, मर्ज राहित को उन्होंने लूट लिया है। जबला बिन लाहिम ने तश्तरी से शराब की सुराही उठाई। खादिमा ने प्याला उठाकर उसके आगे किया। जबला ने सुराही बड़ी जोर से कासिद पर फेंकी। कासिद बहुत करीब खड़ा था। सुराही उसके माथे पर लगी, वो तेवरा कर गिरा। जबला ने खादिमा के हाथ से प्याला छीनकर उसके मुंह पर मारा और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। गुस्सानियों के बादशाहों का महल मातमी फिजा में डूब गया। मर्ज राहित के भगोड़े गुस्सानी बसरा में आ गए और बसरा मातमी शहर बन गया। असल मातम तो उनके यहाँ था जिनके बेटे, भाई, खाविन और बाप उस फंदे में आकर मारे गए थे जो उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के लिए तैयार किया था। इस मातम के साथ एक दहशत भी आई थी और ये दहशत हर घर में पहुंच गई थी। उनके तीर जहर में बुझे हुए होते हैं। किसी को इस तीर से खराश आ जाए वो भी मर जाता है। उनके घोड़े परों वाले हैं, कहते हैं हवा से बातें करते हैं। इन मुसलमानों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर था, उसका जादू चल रहा है। उनके सामने लाखों की फौज भी नहीं ठहर सकती। सुना है कि दिल के बड़े नर्म है, जो उनके आगे हथियार डाल देते हैं इन्हें वो गले लगा लेते हैं। जिस शहर में उनका मुकाबला होता है उस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, लड़ने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। दबी दबी ऐसे आवाज भी सुनाई देती थी। मजहब इनका सच्चा मालूम होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यही उनकी ताकत है, जुनून से लड़ते हैं। इन लोगों पर जो हैरत और दहशत तारी हो गई थी इसमें वो हक बजानिब थे। तुम लोग बसरा को भी नहीं बचा सकोगे। जबला बिन लाहिम कहर भरे लहजे में अपने सालारों से कह रहा था, तुम्हारी बुजदुली को देखकर मैंने रोमियों को मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रोमियों के सीने पर कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रोमी हमारे पाया तख्त की हिफाजत करने आए हैं। वो अपने सालारों को कोस रहा था कि उसे इत्तिला मिली कि मुसलमानों की एक फौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। इतनी जल्दी? उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मर्ज राहित से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए हैं? रोमी सालार को इत्तिला दो। रोमी फौज जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कामयाबियों की खबर सुनकर जबला बिन लाहिम की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खेमा जन थी। इसके सालार को इत्तेला मिली कि मुसलमानों की फौज आ रही है, तो सालार ने फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। इस फौज में अरब ईसाई भी थे। फौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नहीं थी। एक मुसलमान सालार शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर था, जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फतह के लिए भेजा गया था यह उसका एक हिस्सा था। खलीफतुल मुस्लिमीन के अहकाम के मुताबिक सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर के दूसरे हिस्सों को भी यकजा करके अपनी कमान में ले लिया था। बसरा पर शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु के हमले का पस मंजर ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक खत लिखा था। मैंने खालिद बिन वलीद को यह पैगाम सौंपा है कि रोमियों पर चढ़ाई करे। तुम पर इसकी इताअत फर्ज है, कोई काम उसके हुक्म के खिलाफ न करना। मैंने उसे तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। मुझे एहसास है कि दीन के मामलात में तुम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन जंग की जो महारत खालिद की है वो तुम्हें नहीं। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस लश्कर का सालार आला मुकर्रर किया गया। जिस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को कुचलते जा रहे थे, उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फारिग बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने
جب مرز راہید کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام ہوارن میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ رفیقو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا جا رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان کو آگے آنے دے، اور جب وہ مسلمان کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائے اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا، سالار یزید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔ خدا کی قسم، میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجل بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شرجل رضی اللہ عنہ سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرجل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرز راہید سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مرز راہید کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجل رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس رومی فوج کے سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا حراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف مطمئن کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ اکرام وہی لکھتے تھے، ان میں شرجل رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ شرجل رضی اللہ عنہ کا جہد و تقوی تو مشہور تھا۔ وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں
फिर आतिश परस्तों के खिलाफ लड़ाइयों में सीखा है। मुहासराए बसरा के वक्त उनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोश व खरोश के लिहाज से वो जवान थे और इनकी शहसवारी और तेग जनी जवानों जैसी थी। मुहासरे का तीसरा दिन था। रोमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी इतनी है जिसने मुहासरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनांचे उन्होंने अपनी 12,000 नफरी की फौज बाहर निकाल ली। मुसलमान कुल 4,000 थे। शर्जिल ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फौजें आमने सामने आ गई कि नफरी इतनी है जिनसे मुहासरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फौजें आमने सामने आ गई। ए रोमियो, शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे आकर बुलंद आवाज से कहा, खुदा की कसम, हम भागने के लिए नहीं आए। अपनी पहली शिकस्तों को याद करो। तुम हर मैदान में हमसे ज्यादा थे। खून खराबे से तुम बचते क्यों नहीं? हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचा लो। हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। रोमी सालार ने आगे आकर कहा, वापस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई है। खुदा की कसम, हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे कि सोच लो। आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मकालमों और ललकार का तबादला हुआ और रोमी सालारों ने शरियत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। इनका सिपे सालार आगे आ गया। उधर से सरजुल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। बोल ए मुसलमान सालार, रोमी सालार ने कहा, अपनी शरायत बता, इस्लाम कबूल कर लो। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये मंजूर नहीं तो जिजिया अदा करो। ये भी मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, रोमी सालार ने कहा, और हम जिजिया नहीं देंगे। लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही रोमी सालार ने मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। रोमियों की तादाद 3 गुना थी। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 4,000 मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में सफ आरा कर रखा था। इन्हें अपनी नफरी की किल्लत का भी एहसास था। उन्होंने अपने दोनों पहलुओं को फैला दिया था ताकि दुश्मन घेरे में न ले सके। रोमी जंगजू थे और इनके सालार तजुर्बाकार थे। वो मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई घमासान की थी। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु कासिदों को दाएं बाएं दौड़ा रहे थे और मुजाहिदीन को ललकार भी रहे थे। मुजाहिदीन अपनी रिवायत के मुताबिक बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन रोमी 12,000 थे। इनके सालार इन्हें दाएं बाएं फैलाते जा रहे थे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दाएं और बाएं देखा तो इन्हें अपने दस्तों की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक दिखाई दी। ऐसी सूरत हाल पसपाई का मुतालबा किया करती है, लेकिन शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार पर मुजाहिदीन का जोश और जज्बा बढ़ गया। वो पसपाई के नाम से ना वाकिफ थे। उन पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और 4-5 घंटे गुजर गए। फिर वो सूरत पैदा ही हो गई जिससे शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु बचने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के पहलू फैलकर मुसलमानों के पहलुओं से आगे निकल गए थे। वो घेरे में आ चुके थे। अंदर की तरफ नहीं सुकड़ना। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों पहलुओं को कमानदारों को पैगाम भेजे, बाहर की तरफ होने की कोशिश करो। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु की चालें बेकार होने लगी। बेशक मुसलमानों का जज्बा रोमियों की निस्बत ज्यादा था, लेकिन रोमी तादाद में इतने ज्यादा थे कि मुसलमानों पर गालिब आ सकते थे। अल्लाह के परस्तारों, शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, फतह या मौत, फतह या मौत, फतह या मौत। अल्लाह से मदद मांगो,
अल्लाह की राह में जाने दे दो, अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों के लिए यह जिंदगी और मौत का मुआरका बन गया था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार और ललकार पर मुजाहिदीन ने बुलंद आवाज से कलमाए तय्यबा का विर्द शुरू कर दिया, जिससे उन्हें तक़वियत मिली, लेकिन रोमी उन पर हावी हो गए थे। मुसलमानों के जोश और जज्बे में कहर पैदा हो गया था। रोमी फौज मुसलमानों के अक़ब में चली गई। अब मुसलमानों का कुचला जाना यकीनी हो गया था। रोमी जो मुसलमानों के अक़ब में चले गए थे, इन्हें अपने अक़ब में घोड़े सरपट दौड़ने का तूफानी शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा तो सैकड़ों घोड़े इनकी तरफ दौड़े आ रहे थे। इनके आगे दो सवार थे, जिनके हाथों में तलवारें थी। इनमें से एक के सर पर जो अमामा था, इसका रंग सुर्ख था, वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ आ रहे थे। उनके रास्ते में दमश्क आया था, लेकिन वो दमश्क से हटकर गुजर आए थे। पहले वो बसरा को फतह करना चाहते थे। यह अल्लाह के इशारे पर हुआ था। अल्लाह ने कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार और दुआ सुन ली थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब कूच करते थे तो अपने जासूसों को बहुत आगे भेज दिया करते थे। बसरा की तरफ आते वक्त भी उन्होंने जासूसों को बहुत आगे भेज दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बसरा से तकरीबन 1 मील दूर थे, जब उनका एक शतुर सवार जासूस ऊंट को बहुत तेज दौड़ाता वापस खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और इन्हें बताया कि मुसलमानों का कोई लश्कर बसरा के बाहर रोमियों के घेरे में आ रहा है। कौन है वो सालार? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और सवार दस्तों को ऐड लगाने और बर्चियां और तलवारें निकाल लेने का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो दूसरा सवार घुड़सवारों के आगे आगे आ रहा था, वो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान था। उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। रोमियों ने मुकाबले की न सोची। इनके सालारों ने तेजी दिखाई, अपने पहलुओं के दस्तों को पीछे हटा लिया और अपने तमाम दस्तों को किले के अंदर ले गए। इनका मुसलमानों की तलवारों से कट जाना यकीनी था। किले में दाखिल होते होते मुसलमानों ने इनका ताक़ुब किया और कई रोमियों को खत्म कर दिया। किले के दरवाजे बंद हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे। उन्होंने एक हुक्म ये दिया कि जख्मियों और लाशों को संभालो, और दूसरा हुक्म ये कि तमाम लश्कर इकट्ठा किया जाए। उन्होंने सालार शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। वलीद के बेटे शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, खुदा की कसम, तो अल्लाह की तलवार है, तो अल्लाह की मदद बनकर आया है। लेकिन तूने ये क्या किया इब्ने हसना? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से से कहा, क्या तू नहीं जानता था कि ये कस्बा दुश्मन का मजबूत किला है और यहाँ बेशुमार फौज होगी? क्या इतनी थोड़ी नफरी से तू ये किला सर कर सकता था? मैंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म की तामील की है इब्ने वलीद। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ओह अबू उबैदा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आह लेकर कहा, मैं उसका एहतराम करता हूँ, वो मुत्तकी और परहेजगार है, लेकिन मैदान जंग को वो अच्छी तरह नहीं समझता। मोरिक वाकदी लिखता है कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सब, खुसूसन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु, बुजुर्ग व बरतर समझते थे, लेकिन जिस नौयत की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, इनके लिए अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। लेकिन जहाँ नफरी की कमी थी, वहाँ सालारों की भी कमी थी। बहरहाल मोरिक लिखते हैं कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जज्बे और हौसले में किसी से पीछे नहीं थे, और वो बड़ी तेजी से तजुर्बा हासिल करते जा रहे थे। बसरा पर उनका हमला जुर्रतमंदाना इकदाम था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।